Hello students, welcome back to our online class. Today we see how to find the nth term of an AP. Okay, so there is a theorem. If the first term of an AP is A and the common difference is D, then show that its nth term is given by this Tn equals to A plus n minus 1 into D. Okay, and this is the formula to find the nth term of an arithmetic progression. Okay, so let's see the proof. In the given AP, first term is A and common difference is D. So we can write first term in a general form T1 equals to A, and again we can write it like this A plus 1 minus 1 into D, because 1 minus 1 0, D into 0 0, then we get A. Okay, and second term T2 equals to A plus D, you know that na, in general form we write like this, and हम D को कैसे लिख सकते हैं 2 minus 1 into D, because 2 minus 1 is 1 and 1 into D. Okay, and the third term will be T3 equals to A plus 2D, then 2D can be written as 3 minus 1 into D. Okay, and fourth term is A plus 3D, and 3D can be written as 4 minus 1 into D. Okay, similarly we can find the nth term of an AP like this. Nth term equals to Tn equals to A plus n minus 1 into D. Okay, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या है 1, सेकेंड टर्म के लिए 2, थर्ड टर्म के लिए 3, फोर्थ टर्म के लिए 4, तो nth टर्म के लिए यहाँ पे क्या आएगा n, और a की जगह तो a ही है, प्लस की जगह प्लस का साइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू nth टर्म के लिए n लिख दिया, -1 वैसे ही है और d. Okay, so we have proved that कि this is the formula for finding nth term of an AP. Okay, now we see how to find the nth term from the end of the arithmetic progression. Okay, means अब हमें जो arithmetic progression दिया होगा उसका last term भी हमको given होगा, तो हमें nth term find करना है. Okay, so theorem is if A be the first term of an AP and D is the common difference and L is the last term of the given AP, then show that its nth term from the end is given by L minus bracket में n minus 1 into D. Okay, so let's see the proof. The given AP may be written as A plus 2, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and third last term is L minus 2D, second last term is L minus D, and last term is L. Okay, so thus we have last term is equals to L, and we can write L like that, L minus 1 into D, because 1 minus 1 is 0 and D into 0 0, then we get L. Okay, and second last term is L minus 2 minus 1 into D. जैसे हमने nth टर्म निकालने के लिए किया था ना, सेम वही प्रोसेस है, बस हम अभी जो भी कर रहे हैं लास्ट टर्म से कर रहे हैं. पहले A फर्स्ट टर्म से कर रहे थे तो ऐड करते जा रहे थे, और अभी लास्ट टर्म से देख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं. ओके, सो सेकेंड लास्ट टर्म इज L minus 2 minus 1 into D. Third term from the end is L minus 3 minus 1 into D. Fourth term from the end is L minus 4 minus 1 into D. In this way we get nth term from the end is L minus n minus 1 into D. This is the formula to find the nth term from the end of the AP. Okay. Now we see our next topic, arithmetic mean. Okay, if three numbers A, B and C are in AP, then B is the arithmetic mean between A and C. Okay, arithmetic mean between two numbers. अब हम formula derive करेंगे to find the arithmetic mean between two numbers. Okay, let the given number be A and B. Okay, दो number given है A and B. Let A be the arithmetic mean between
द नंबर ए एंड बी। ओके, और हमने मान लिया कि जो ए है कैपिटल ए वो एरिथमेटिक मीन है बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना डेफिनेशन में कि यदि ए बी सी 3 नंबर है तो जो मिडिल वाला टर्म होगा वो क्या होगा, उसका एरिथमेटिक मीन। तो हमने मिडिल में प्लेस कर दिया कैपिटल ए को और मान लिया कि ये हमारा एरिथमेटिक मीन है। ओके, देन अब हमें पता है कि जब जो हमारा सीक्वेंस है यदि वो एरिथमेटिक मीन है तो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना, यही पढ़ा है ना हमने कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, तो हमने उसको इक्वल में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, माइनस ए इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो a प्लस ए एंड माइनस ए को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, सो a प्लस बी। देन a प्लस ए इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू a प्लस बी। देन कैपिटल ए इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में। ओके, देन a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b। This is the formula to find the arithmetic mean between two numbers. Okay. Now we see how to find the sum of the n terms of an AP. Okay. So theorem is given like that. Prove that the sum of first n term of an AP in which first term is equals to A, common difference is D and L is the last term. Okay. Is given by Sn equals to n by 2 a plus L or Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into D. ओके, मीन्स हमको एक AP गिवन है n टर्म्स की, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें A बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस D गिवन है, लास्ट टर्म L गिवन है। तो हमें बताना है कि जो Sn है मतलब सम ऑफ दी n टर्म्स का जो सम है वो किसके कैसे निकालेंगे हम, n by 2 a plus L के फॉर्मूले से या फिर Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into D, इस फॉर्मूले से। ओके, तो लेट्स सी द प्रूफ। Considered an AP having n terms in which first term is A, common difference D and last term is L. Okay, now the given AP may be written as, अब AP को हम लिख सकते हैं A plus D, A plus 2D, A plus 3D, third last term L minus 2D, second last term L minus D and last term is L. Okay, then if Sn be the sum of the first n term of an AP, then Sn equals to, अब देखिए Sn क्या है, हमारा सम है फर्स्ट n टर्म्स का, तो फर्स्ट n टर्म को हमने सम के फॉर्म में लिख दिया, मतलब एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो a plus d plus a plus 2d and so on. Then रिटर्न दी अबो सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर। अब इस सीरीज को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ओके, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो L फर्स्ट आ जाएगा, फिर L माइनस डी, देन L माइनस 2d एंड सो ऑन। फिर यहाँ से देखो रिवर्स a प्लस 2d, a प्लस d एंड a, ये हो जाएगा हमारा टर्म। तो अब ये हमारी एक सीरीज मिल गई और एक दूसरी सीरीज। अब हम इन दोनों सीरीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, adding the corresponding term of the second and third series, second series and third series. Okay, तो अब इसको ऐड करने से हमें क्या मिल जाएगा, Sn plus Sn 2Sn. ओके, अब देखना यहाँ पे A plus L. ओके, तो हमें मिल गया A plus A, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है। अब सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट टर्म से ऐड करेंगे, मतलब A plus D को हम ऐड करेंगे L minus D से। तो देखो यहाँ पे D और D क्या हो जाएगा, D यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल A प्लस L। वैसे ही थर्ड टर्म को हम थर्ड लास्ट टर्म से ऐड करेंगे तो 2D कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस L एंड सो ऑन। मतलब हमें A प्लस L कितने टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा, क्योंकि n टर्म्स की सीरीज है ना। तो हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ D वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, L, A प्लस L। ओके, तो कितनी बार मिला हमें, n टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं इसको n A प्लस L। ओके,
देन देखो अब 2 को ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो हमें Sn इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, n/2 a प्लस l। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करने का। अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में हल्का लिखा है ऊपर में कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यही Tn हमारा क्या होता है, L के इक्वल, मतलब हमारे लास्ट टर्म के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे यदि हम L की प्लेस पे ये फॉर्मूला प्लेस कर दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन हमारा Sn क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके Sn फाइंड करेंगे, और जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब एक छोटा सा नोट पॉइंट है, if Sn and Sn minus 1 are respectively the sum of n terms and the sum of n minus 1 terms, okay, then nth term means AP का nth term जिसे हम Tn बोलते हैं is given by Tn equals to Sn minus Sn minus 1, मतलब sum of the nth term को हम माइनस कर देंगे sum of the n minus 1 term से, तो हमें क्या मिल जाएगा, Tn। ओके,